Here are a few disclaimers. Content in the video is only for education purpose. It's not any kind of investment advice. Investment slash trading of securities are subject to market risk. I'm not a securities advisor. I will not be responsible nor liable, not be responsible nor liable for any losses resulting from direct or indirect use of such information. Before investing slash trading in securities stock, please do your own research. Kindly seek advice from a financial advisor before investing slash trading in any kind of security slash stock. Okay, so yeah, welcome back to our YouTube channel, Shom Adil. We are back with a yet another interesting video. We are going to compare two companies. दो कंपनी को हम compare करने वाले हैं. The first one being Exide, the second one being Amron. आप जानते होंगे ये क्या काम करते हैं, ठीक है? तभी आप ये वीडियो देख रहे हो by the way. If you are comparing Exide versus Amron, we must be knowing कि Exide and Amron majorly बैटरी प्रोडक्शन में. इनका जो मेजर काम है, जो रेवेन्यू इनका आता है, मेजर रेवेन्यू बैटरी प्रोडक्शन से आता है, ठीक है? Rather than writing it here, we could write it here as well. Okay. उनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो बैटरी प्रोडक्शन से आता है, ठीक है? फर्दर एक्साइड का जो अभी करंट मार्केट प्राइस है दैट्स अराउंड 375. ओके, 375 फॉर एक्साइड and for Amron it's about 1019. अच्छा, कई लोग अब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एक्साइड जो है वो सस्ता चल रहा है. आप समझ लो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. एक्साइड 375 का चल रहा है और एमरॉन 1019 का चल रहा है. क्या इसका ये मतलब है एक्साइड इज अ बेटर ऑप्शन टू ऑप्ट एज कम्पेयर टू एमरॉन क्योंकि एक्साइड 375 का चल रहा है और एमरॉन 1019 का चल रहा है क्योंकि एक्साइड सस्ता चल रहा है? We can buy one equity of Excite for 375 and we can buy one equity share of Amron for 1019. No, it doesn't works that way. Valuation होती है उसके अंदर की वैल्यू डेरिवेशन होती है तब जाके ये प्राइस डिसाइड होती है, ठीक है? इट्स नॉट दैट इजी कि इफ इट्स चीपर इट्स बेटर, ठीक है? Before starting with the video, I would like to give a disclaimer. Quick disclaimer: I am not a separate research analyst or any kind of advisor. This is not a stock recommendation. Don't trade on this. Don't just take your positions and don't open your positions based on this video. This video is only for education purpose. Okay. So yeah, let's start with the very first thing, which is market cap. Market cap of Amron is way more as compared to market cap of Exide is way more as compared to market cap of Amron. In case of Exide is 13,900 crore, 31,900 crore, and in case of Amron it's 18,658 crores. So here Exide would be a better choice. Okay, price is to earning ratio, PE ratio. Okay, अगर हम PE रेशियो की बात करें, PE रेशियो एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है. व्हाट इज मीन बाय वैल्यूएशन मैट्रिक्स? PE रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये वीडियो शायद से थोड़ा लंबा हो क्योंकि हम एक एक एलिमेंट को समझते जाएंगे. सो मैं टाइमलाइन में यहाँ पे बाय द वे मैं एक आपको एक वीडियो का रिकमेंडेशन भी ऐड कर दूंगा रिगार्डिंग एक्साइड एंड एमरॉन इंडिविजुअल बेसिस पे. ओके, सो यू कैन वॉच दैट एज वेल. If you are talking about PE ratio, what is meant by PE ratio first of all? PE ratio stands for current market price. CMP means current market price, at which value, the value at which the one equity share is being traded, divided by earning per share. Okay. So if PE ratio is high, that means either the current market price is high or EPS is low. If PE ratio is low, that means either the current market price is low or EPS is high. ठीक है? So a better PE ratio means it's being valued less as per the current scenarios or current stats. It's being valued less. ठीक है?
Here we can go with Amron as it's having low PE ratio of 19.7%. 19.7, it's not in percentile, 19.7, okay? Return on capital employed, it's 10.2 and 18.7. This is 18.7, so it's a better matrix in case of Amron. Return on equity, which is net profit by shareholders' equity or assets minus liability. Shareholder equity is basically the amount of money which a shareholder would take with himself if company has to wrap up all its assets. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शेयर होल्डर इक्विटी का एक छोटा सा ब्रीफ आउट देना चाहूंगा. शेयर होल्डर इक्विटी होता क्या है? ठीक है, शेयर होल्डर इक्विटी, व्हाट इज मीन शेयर होल्डर इक्विटी? शेयर होल्डर इक्विटी मीन्स अगर एक कंपनी को कल बेचा जाए, ठीक है, तो इसके सपोज एसेट्स हैं जो उसके लिए कैश जनरेट करके दे रहा है, ठीक है, एंड इसकी लाइबिलिटीज है जो इसको पे ऑफ करनी है. ठीक है, सपोज लोन हो गया या फिर एनी काइंड ऑफ बोरोइंग्स हो गई, एनी काइंड ऑफ दैट थिंग. ठीक है, जब एक कंपनी बेची जाएगी तब इसके असेट्स को कैश आउट किया जाएगा, कैश में कन्वर्ट किया जाएगा, और इस कैश से इस लाइबिलिटीज को कट ऑफ किया जाएगा, पे ऑफ किया जाएगा. जो बचा हुआ पैसा होगा वो इक्विटी होल्डर्स जो है, जो शेयर होल्डर इक्विटी होल्डर्स है, वो अपने साथ ले जाएंगे. उसको हम लोग शेयर होल्डर इक्विटी कहते हैं. ठीक है, व्हाट्स मीन बाय शेयर होल्डर इक्विटी? The amount of money which shareholder will take home or with themselves in the case the company decided to go and sell all its assets and pay its liabilities. ठीक है, so net profit ROE जो होता है, return on equity, has a formula of net profit divided by shareholder equity. It's 14 in this case. This one is a better matrix. Okay, this is not a buy or sell recommendation. Okay, we are just comparing the matrices कि कौन से मैट्रिक्स में अच्छा कंपैरिजन बेसिस पे हमें मिल रहा है. It doesn't means कि ज्यादा मैट्रिक्स अगर किसी साइड पॉजिटिव आता है तो दैट्स अ बाय रिकमेंडेशन और सेल रिकमेंडेशन. सेल्स ग्रोथ फ्रॉम 2013 टू ट्रेलिंग 12 मंथ्स. ठीक है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब आज से 12 महीने पहले से लेके आज तक. आज से 12 महीने पहले से लेके आज तक हमारा क्या चल रहा है, दैट्स व्हाट्स मींट बाय ट्रेलिंग 12 मंथ्स. ठीक है, सेल्स ग्रोथ हम देखेंगे. इफ वी सी सेल्स ग्रोथ, ओके, इफ वी सी सेल्स ग्रोथ, just wait for a while. Here we are. ठीक है, quarter results, we want to go to annual. Here are Exides का सेल ग्रोथ, this one is Amron का सेल ग्रोथ. ठीक है, अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ देखें एक्साइड के केस में तो 2013 में ये 6,308 की सेल्स क्या करते हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 17,075 की ये सेल्स करते हैं. ठीक है, while in case of Amron they used to do a sales of 2,959 case of 2013 and in trailing 12 months 12,228. क्या ये एक्साइड से ज्यादा है? नहीं, पर क्या ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ है? 2013 में ये 2,959 के क्या करते थे और 12,228 के करते. क्या ये सिग्निफिकेंट जंप एज कंपेयर टू एक्साइड? आप समझ रहे हो, परसेंटाइल बेसिस पे कितना हो रहा है वो मैटर करता है rather than न्यूमेरिकल फैक्टर बेसिस पे कितना हो रहा है. ठीक है, सो ये हमने लिखा है यहाँ पर 2013 में 6,308 करोड़ की सेल्स हुई है फ्रॉम एक्साइड साइड एंड इन ट्रेलिंग 12 मंथ्स इज 17,075, सो 17,075. So yeah, it has the number has been changed. 17,075, yes, 17,075 and 12,228. This one is 12,228. Okay, so 6,308 से लेके they increase their sales to 17,075 and 2,959 से लेके 12,228 they increase the sales in case of Amron. ठीक है, परसेंटाइल सेल्स ग्रोथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एज आई सेड अर्लियर कि बस एब्सोल्यूट सेल्स ग्रोथ देख के फायदा नहीं होता.
ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट सेल्स ग्रोथ, दिस इज एब्सोल्यूट सेल्स ग्रोथ। परसेंटाइल में हम कितने, ये हमेशा याद रखिएगा, इक्विटी मार्केट्स में जब भी आप किसी चीज का कंपैरिजन करते हो तो परसेंटाइल बेसिस पे किया जाता है, ना कि एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज इन बेसिस पे नहीं किया जाता। क्यों क्या नहीं किया जाता? क्योंकि आपने परसेंटाइल पे कितना इंक्रीज किया वो मैटर करता है। अगर आप 1 से 4 हुए, ठीक है, तो आपने 400 गुना ग्रोथ दिखाई है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, पर अगर वहीं पे आप पर वहीं पे अगर आप 100 से 150 हुए, ठीक है, 100 से अगर आप 150 हुए तो आपने सिर्फ 50% ग्रोथ दिखाई है। ठीक है, 400% कहा, 50% कहा, और नंबर वाइज अगर आपको लगे यार बहुत बड़ा लगेगा, 100 पहले था फिर वो 150 हो गया, यहाँ पे बहुत छोटा लगेगा, एक पहले था फिर वो 4 हो गया, पर परसेंटाइल बेसिस पे 400% की ग्रोथ है। ये जो बड़ा लग रहा है आपको, पर परसेंटाइल बेसिस पे 50% की ग्रोथ है। यहाँ पे 400% बहुत ज्यादा ग्रोथ है एज कम्पेयर टू 50% ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इक्विटी मार्केट से मेरा हमेशा जो भी कंपैरिजन होता है परसेंटाइल बेसिस पे होता है, ना कि किसी एब्सोल्यूट फिगर बेसिस पे। ठीक है, मूविंग अहेड जेंटलमैन, परसेंटाइल सेल्स ग्रोथ फ्रॉम 2013 से लेके ट्रेलिंग 12 मंथ्स 170% ग्रोथ हुई है इन केस ऑफ एक्साइड। 6308 से लेके 17075 की जो ग्रोथ है वो 160% की है, 170.69% की है। ठीक है, पर जब हम एमरॉन का केसेस देखते हैं विच इज 2959 to 1228, 2959 to 12,228 का जो परसेंटाइल ग्रोथ है इस 313.25, इट्स वे हायर एज कंपेयर टू 170%। ठीक है, मूविंग अहेड, परसेंटाइल एक्सपेंस इंक्रीज फ्रॉम 2013 टू ट्रेलिंग 12 मंथ। परसेंटाइल इंक्रीज मतलब क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, आप समझाऊंगा जरूर। अगर आप देखो परसेंटाइल इंक्रीज ऑफ एक्सपेंस, अगर मेरा एक्सपेंस यहाँ पे 5,452 था और यहाँ पे 15,258 था, तो इन दोनों के बीच में 2018 से लेके ट्रेलिंग 12 मंथ्स इन दोनों के बीच में कितना परसेंटाइल फर्क है? जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस उतने कम होंगे। ठीक है, इन केस ऑफ एक्साइड इट्स 179.89, okay, just for a while, yes, it's 179.89, and in case of Amron it's 319.98. okay, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एंड इट शुड बी कंसिडर्ड वेरी वाइड। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है? ठीक है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन? देख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? ओ गुड, ग्रेट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? ठीक है, परसेंटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप जान लो, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? ठीक है, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे एक्साइड के केस में, ठीक है, आपको तीसरा कॉलम दिखेगा किस चीज का? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दिखेगा। ठीक है, मैं जितने की सेल कर रहा हूँ, जितने का मैं सामान बेच रहा हूँ, उसमें से जो मेरे एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं बोलना चाहूंगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? एक्सपेंड करके देखते हैं, पता चल जाएगा। मटेरियल कॉस्ट, क्या मटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है? जरूर आता है जी, क्यों नहीं आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है? जरूर आएगा। जिस्ट एक्सपेंस के बिना आपका प्रोडक्ट मार्केट में फाइनल पोजीशंस पे उतर नहीं सकता सेल करने के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। क्या इसमें एम्प्लॉय कॉस्ट आता है? आता है। आपका एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहा है, उसके वजह से प्रोडक्ट बनता है, वही तब जाके मार्केट में फाइनल फिनिश्ड गुड आता है जिसको कंज्यूमर कंज्यूम करेगा या फिर बाय करेगा। समझे? एम्प्लॉय कॉस्ट आती है। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर कॉस्ट आती है, तो मार्केटिंग अमाउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग। ओके, जो सेल्स हमने की, जितने की, उसमें से हमने अगर एक्सपेंस माइनस किया तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, माइनस दिस इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये हमारा कितना परसेंटाइल है ऑफ सेल्स? दिस इज 14 परसेंटाइल। ये जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये कितना परसेंटाइल है ऑफ सेल्स? दिस इज 11 परसेंटाइल।
ये जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये हमारा कितना परसेंटाइल है ऑफ सेल्स? दिस इज 10 परसेंटाइल. दैट व्हाट इट मीन्स बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. सिंपल. दिस इज ओपीएम. समझ गए? आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना परसेंटाइल, कितना टक्केवारी है आपके सेल्स में, ये बताता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. होपफुली आप समझ गए होंगे. नहीं समझ आया तो वापस से देखिए. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है? इसका एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना? एक साइड का 11.46%, एंड इसका 15.15%. इसका मतलब क्या है? मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर ज्यादा आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे सेल्स करता हूँ, यहाँ पे मेरा यहाँ पे मैं एक्सपेंस करता हूँ, यहाँ पे मैं सेल्स कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा माइनस एक्सपेंस करके मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है. अगर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स के कंपैरिजन में अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये कि मेरा एक्सपेंस कम है. हाँ, ये इसका मतलब ऑब्वियसली है. अगर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटाइल ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मेरा एक्सपेंस कम है, ठीक है. सो एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने कैसे निकाला? ठीक है, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन केस ऑफ एक्साइड इज 11.46 एंड इन केस ऑफ Amron is 15.15. This is a point to be noted. Okay, 15.15 is way more high as compared to 11.46. Amron, so this means here 15.15. Okay. और मैंने एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है. एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए वी हैव सम अप ऑल दीज. सपोज इन केस ऑफ एक्साइड हम लोग देख रहे हैं. लेट्स सी एमरॉन यहाँ, ठीक है. एनुअल पीएनएल स्टेटमेंट पे मैंने वी हैव सम ऑफ ऑल दीज, हमने इनका सबका सम किया है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वी गेट हियर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. सम ऑफ ऑल दीज डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल्स टू एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. ये हमारे केस में एक्साइड में 14.46 है एंड एमरॉन में 15.15. दिस वन इज अ बेटर थिंग, ठीक है. नेट प्रॉफिट परसेंटाइल ग्रोथ फ्रॉम 2013 से लेके ट्रेलिंग 12 मंथ्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि नेट प्रॉफिट जो होता है वही जो होता है. सपोज यहाँ पे लेट्स गो टू पीएनएल स्टेटमेंट, वी विल अंडरस्टैंड मोर, वी विल अंडरस्टैंड बेटर. ओके, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे यहाँ पे सेल्स होती है, सामान बेचा जाता है. नेट प्रॉफिट तक हम लोग जाएंगे. कैसे होता है डिराइव? एक्सपेंसेस होते हैं. मेरा ये प्रोडक्ट बनाने में जो मैंने मार्केट में इतने भाव में बेचा उसके लिए मुझे कितना खर्चा आया, इतना खर्चा आया, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ठीक है. मोटा मोटा जो मेरा पहला मुनाफा मुझे दिखा वो 855 का दिखा, 855 करोड़. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एक्साइड फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2013, ठीक है. मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना था. अदर इनकम्स मैंने जोड़े, इंटरेस्ट मैंने जोड़ा, डिप्रिसिएशन, ये अकाउंटिंग टर्म्स हैं, आपको समझने पड़ेंगे. प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा इतना था, मैंने टैक्स पे कर दिया, मेरा नेट प्रॉफिट आ गया. सबसे आखिर में जो किया जाता है वो टैक्स पे किया जाता है. टैक्स पे करने के बाद जो मेरा पैसा बचा वो मेरा नेट प्रॉफिट था. ये जो है ना, ये पैसा, ये जो है ना, ये पैसा कंपनी का है. ये पैसा कंपनी अपने पास रखती है या तो फिर अपनी इक्विटी होल्डर्स को एज इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड पे आउट करती है. एम आई क्लियर? ठीक है. सो नेट प्रॉफिट ग्रोथ फ्रॉम 2013 से लेके ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक कितना परसेंटाइल है? क्योंकि नेट प्रॉफिट ही वही चीज है जो कंपनी घर ले जाएगी, जो कंपनी आगे लगाएगी, ठीक है, जो कंपनी अपनी इक्विटी होल्डर्स को देगी. ओके, सो नेट प्रॉफिट शुड ऑलवेज बी टेकन केयर, कॉज धंधा जो है ना लॉस करने के लिए कर रहा है. अगर हमारा चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भाई बन भी रहा है पर हमारा हाल ही खस्ता हो जा रहा है इंटरेस्ट पे करने के लिए बैंक को, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
तो फिर नेट प्रॉफिट तो जनरेट होगा ही नहीं, नेगेटिव में आएगा। ऑब्वियसली वी डिडंट वांट दैट, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए जो बिजनेस जनरेट करे। ओके, इन केस ऑफ एक्साइड द नेट प्रॉफिट in 2013 is 551 and in case of trailing 12 months it's 798. So 551 which is in March 2013 से लेकर trailing 12 months which is 798 के बीच में कितना परसेंटाइल फर्क है, ठीक है, ये हम देखेंगे। दिस वन इज अबाउट 43 परसेंटाइल, ठीक है, इन केस ऑफ एक्साइड। एंड इन केस ऑफ एमरॉन नेट प्रॉफिट 287 करोड़ टू 1025 करोड़ इन ट्रेलिंग 12 मंथ्स, इन दोनों के बीच में कितना फर्क है, दिस वाज 257.15 परसेंटाइल, ठीक है। ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है मैं बताना चाहूंगा। ईपीएस जो होता है ना, ईपीएस इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अगर मेरा नेट प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से मैं उसको डिवाइड करता हूं, तो मेरा EPS in terms of Exide is being stagnant, 6.46, 6.417, 8, 2, 9.8999, 551, यहाँ पे ज़्यादा हो गई, यहाँ पे exceptional इन लोगों ने they have given an exceptional income of other incomes में they have added 2007 to 5 crores, ठीक है, इसलिए यहाँ पे EPS ज़्यादा हो गया 9, 10, 9। सो यहाँ पे डबल डिजिट एक बार देखने के लिए मैंने हमें EPS, बट इन केस ऑफ एमरॉन और अमर राजा EPS has been constantly growing from 16, 21, 24, 28, 28, 27, 28, 38, 27, 29, 42, 56. EPS has been continuously growing. So यहाँ पे mention किया गया है ये point. EPS is stagnant in case of Amron, while in the case of EPS is stagnant in case of Exide, but in case of Amron it's growing. Okay. Borrowing, a very important point. Borrowing क्यों important है, ठीक है। एक चीज होती है, जब एक कंपनी एक जगह पे खड़ी होती है और जब समय बीतता है, समय के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज आती है, ठीक है। जब अपॉर्चुनिटीज आती है ना, कंपनी के पास कैश पोजीशन से फिर एसेट्स रेडी होनी चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करके उससे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि समय के हिसाब से कंपनी के पास उतना कैश पोजीशन से एसेट रेडी नहीं, तो उस अपॉर्चुनिटी को टोटली कन्वर्ट करने के लिए टू इनटू प्रॉफिट्स, ठीक है। जब कंपनी के पास डेप्थ होता है ना, तो द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ कंपनी टेंड्स और इंक्लाइंस टुवर्ड्स पेइंग इट्स डेप्ट रादर देन एक्सपेंडिंग। जनरली ये देखा जाता है कि कंपनी के पास अगर हायर डेप्थ है तो उनका जो मेजर फोकस हो जाता है वो हो जाता है डेप्थ को पे आउट करना, ऑब्वियसली, क्योंकि किसी और का पैसा है, उस पर ब्याज लग रहा है, तो आप उसको पहले पे आउट करोगे, ठीक है। इसलिए डेप्थ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Here we go towards Exide's borrowing. बैलेंस शीट अगर हम लोग देखेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल फिक्स असेट, इक्विटी कैपिटल, सॉरी, यहाँ पे हमें दिखेगा बोरोइंग। एक्साइड की जो बोरोइंग, यहाँ पे हमें बोरोइंग दिख रहा है, यहाँ पे हमारी बोरोइंग खत्म हो रही है, अदर बोरोइंग, टोटल लायबिलिटीज, ओके फाइन। अगर हम बोरोइंग देखें एक्साइड के केस में, इट्स बीन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फॉर 51 crores in 2013 to 1867 crores in September 2024, ठीक है। इसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग has been increasing as well as the short term borrowing, ठीक है। and on September 2024 the total borrowing on Exide is 1876, including long term, short term, lease liabilities, all these three things, it's summing up to 1876, okay।
that what Exide has in its borrowing. But in case of Amron, is that so? Let's see. देखते हैं, देखेंगे तो पता चलेगा. ठीक है, बोरिंग. क्या एमरॉन की बोरिंग उतनी है 1800 करोड़? नो, इट्स जस्ट थ्री फिगर बोरिंग, 334 करोड़. उसमें से लॉन्ग टर्म कितनी है? जीरो. उसमें से शॉर्ट टर्म कितनी है? 217. उसमें से लीज लाइबिलिटी कितनी है? 117. ठीक है. सो ऑन सितंबर 2024 Amron reported its borrowing of 334, but in case of Exide, it's 1867. I would like to confirm the same. 1867 in terms of Exide, summing up of long term, short term, and lease liabilities. But in case of Amar Raja, it's about 334, summing up of long term, short term, and lease liabilities. Okay. So yeah, Exide is having way more higher borrowings as compared to Amron. So this is for the video. Hope you like our comparison. This is a very basic comparison. And one more thing I would like to give out a disclaimer at the end of the video as well. This is not a buy or sell recommendation. This video is only for education purpose. I'm not a SEBI advisor or any kind of SEBI research analyst. This is only for pure education purpose. This is not a buy or sell recommendation. Okay. So if you like our content, do leave me a comment what you like first of all. Do like our video, share our video, subscribe our channel, press that bell icon, and do let me know what else video would like to see from my side. Okay. Thank you. Signing off.